We did franchising, joint ventures, family owned businesses. Should we start from 1.3 or Manal, are you there? Manal, are you there? All right. Iman, can you tell me if we were done with the public sector or not? We did family business, I remember, but did we do public sector? Iman, are you there? All right, I'm starting off with so this was the chapter business structure, and we were already done with the limited companies, joint ventures, cooperatives, franchising. These things we're already done.
family owned businesses. So let's now move to the public sector and then we'll go about it like this only. So, what is a public sector? Public sector are businesses that are owned and controlled by the government. All right. So, every business that is under the control of the government, that is a public sector. Usually, the role of a public sector is different than a primary sector. In a public sector, what we actually want is that we want to provide goods to everyone, like the people who cannot afford certain goods. That's not AS content, it's A2. Manal, I think you're a bit confused in this. Business structure is A2s. Yeah, the Surah's teaching is A2. Yeah, I've just gone through the book as well. So if you're done with this, that is a different thing. But I went through the entire syllabus yesterday. But business structure, देखो, if you could see the heading as well, this is business structure, and business structure is part of A2s. All right, so let's quickly go through this. Now, when we talk about public sector, I've told you that public sector is something that is owned and controlled by the government. The basic aim is not to earn profit, but the basic aim is to give back to the society and give back to the people who cannot afford things. So it's more like you are trying to provide goods that everyone cannot afford. सो इसके अंदर हमारे पास देर आर सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स, एक होते हैं पब्लिक गुड्स और एक होते हैं मेरिट गुड्स. तो वो पब्लिक और मेरिट गुड्स क्या हो सकते हैं कि जैसे आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आर्मी हो गई और स्ट्रीट लाइट्स हो गई. ये वो वाले गुड्स हैं जो जिसके लिए कोई पे नहीं करना चाहता, मतलब लाइक एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड देम, बट ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल वांट दैट दे हैव दीज गुड्स. All right. So the first advantage is they provide important goods and services at reasonable prices. आपको कम पैसों में they will try to provide those goods. Second aim of the government is to provide employment to the majority. Government will always want कि ज़्यादातर लोगों की employment हो. उससे दो फायदे होते हैं. अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो पैसे कमाएंगे, एंड वंस दे अर्न मनी, सो दे विल गिव द गवर्नमेंट अ टैक्स. ठीक है, जब वो पैसे कमाएंगे तो वो अपना इनकम टैक्स और ये सब देंगे. और दूसरा, जब वो पैसे कमाएंगे तो गवर्नमेंट को आगे से ये वाला मसला नहीं होगा कि इनको हमने लाइक वी हैव टू पे देम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. ठीक है. दूसरा ये कि इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, एग्जांपल चार्ज लो प्राइसेस टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. अब गवर्नमेंट जो है, क्योंकि दे हैव कंट्रोल ओवर दीज बिजनेसेस, तो वो उसकी प्राइसेस इतनी कम रखेंगे कि आपकी इन्फ्लेशन ना हो. सो दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कि इन्फ्लेशन कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इस तरह की बातें. दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट. ये मैंने आपको अभी बताया कि हाउ आर दे सोर्स ऑफ इनकम. जब आपके पास ऑल पैसे आते हैं एज अन पीपल हु स्टार्ट टू अर्न, दे विल पे द गवर्नमेंट टैक्स. ठीक है, नॉर्मली जो इनकम टैक्स होता है, तो इससे गवर्नमेंट को भी पैसे मिलते हैं. सही है. नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द मेजर डिसएडवांटेज इज कि आपके पास प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है. अब आपको, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, अब आप कोई भी गवर्नमेंट इदारा देखोगे, व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स, दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज द प्राइवेट स्कूल्स. एंड द रीजन बीइंग के जब आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो आप इतने एफिशिएंटली काम नहीं करते. आपको पता है भाई, पैसे तो आ जाने हैं, किसी ने इतना पूछना वूछना है नहीं, और हम सस्ते में ही दे रहे हैं, सो नो वन विल क्वेश्चन अस. दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम. Second is they tend to provide poor quality goods and services due to the absence of stiff competition. अब कंपटीशन ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो बहुत ही लिमिटेड कंपटीशन होता है. सो व्हेन देयर इज लिमिटेड कंपटीशन, व्हाट हैपेंस इज दैट गवर्नमेंट
do not work upon improving the production or the efficiency of the goods and services. इसकी वजह से आपके गुड्स जो हैं वो पुअर क्वालिटी के रहते हैं. थर्ड इज लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग वर्कर्स लीड्स टू इनएफिशिएंसी. अब वर्कर्स को पता है कि हमने कोई हमारी कोई बोनसेस नहीं लगने, कोई एक्स्ट्रा पैसे हमें नहीं मिलने. सो व्हाट विल हैपन इज दैट वर्कर्स विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें या बहुत अच्छा काम करें, जिसकी वजह से उनको वो मोटिवेटेड हों और वो एफिशिएंटली काम करेंगे तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे. उनको पता है कि हम अच्छा करें या बुरा करें, वील गेट अ फिक्स सैलरी. सो वंस यू गेटिंग अ फिक्स सैलरी यू विल थिंक दैट वी शुड वर्क द सेम वे. ठीक है. लास्ट इज दिस सफर फ्रॉम एक्सेसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. अब ये एक बड़ा मेजर चीज है कि आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहती है. मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि whoever will be in the control, like who whichever party is in control right now, उसके लोग गवर्नमेंट के कामों में बैठ जाएंगे. तो देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी क्रिकेट का पता हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज योर मेन जो इदारा क्रिकेट को चला रहा है. तो व्हेन नवाज शरीफ वाज देयर, इट वाज नजम सेठी, वन ऑफ द मेजर बंदा जो who was running the business. Now once Imran Khan came in, so he did not like Najam Sethi and he completely changed the trend के अब मेरे बंदे बैठेंगे. So this is how the influence continues. All right. अब आपके पास पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रास्टेड में क्या होता है. देर आर बेसिकली थ्री डिफरेंसेस. और लास्ट टाइम आई थिंक ईमान ने बोला था कि अगर सर आप हमें बताएं कि इसका पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. तो आज हम लोग जैसे ही प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट करेंगे, सो वी हैव अ क्वेश्चन फॉर प्राइवेटाइजेशन जो मैंने निकाल के रखा हुआ है. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ डू वी सॉल्व दैट क्वेश्चन. ऑलराइट. तो थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस देख लो. पब्लिक सेक्टर जो है उसका बेसिक आइडिया इज टू सर्व द कम्युनिटी, दैट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कम्युनिटी. अब आपके पास कोई भी जैसे अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि भाई ट्रांसपोर्ट बिजनेस है. तो पब्लिक सेक्टर की क्या कोशिश होगी कि सब वो ट्रांसपोर्ट यूज कर सकें, वो इतना सस्ता हो दैट एवरीवन कैन मैनेज. हाउएवर प्राइवेट सेक्टर ये बात करेगा कि भाई हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं. आर बेसिक मोटिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो पब्लिक सेक्टर तो बस की बात करेगा और प्राइवेट सेक्टर विल टॉक अबाउट एरोप्लेन्स एंड दे विल से कि भाई हम इतने एफिशिएंटली चलना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा किराया लें. ठीक है, हमारा एयर फेयर ज्यादा से ज्यादा हो ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले एंड देन वी कुड इन्वेस्ट दिस प्रॉफिट बैक इनटू द बिजनेस. सही है. सेकंड पब्लिक सेक्टर का काम क्या है, हमने पहले भी बात की थी, एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक सेक्टर हमेशा कोशिश करता है कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, लोगों को नौकरी मिले एंड वंस दे हैव these jobs, so it will actually help for the overall economy. However, private sector is basically talking about increasing efficiency and cutting cost. So if you want to increase efficiency and cut cost, you might not think about jobs. आप machines पे चले जाओगे और जब ज्यादा machines पे जाओगे तो jobs तो वैसे ही चली जाएंगी. तीसरा है पब्लिक सेक्टर बिजनेस यूजुअली लोकेट्स इन रीजन्स वेयर देयर इज अंडर डेवलपमेंट टू क्रिएट जॉब्स. अब पब्लिक सेक्टर जो है वो कहाँ पे कोशिश करता है, वो विलेजेस में जाएगा, वो ऐसे जोन्स में जाएगा जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ताकि उनको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए और उनकी इनकम जनरेट होने लगे. However, private sector will only consider places जहाँ पे उनको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज है. ठीक है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके परफेक्ट. अब ये प्राइवेटाइजेशन को दोनों बड़ा गौर से सुनना, बिकॉज वील डू अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस. we'll do a small question on this.
कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो आएगा ना पेपर 3, मनाल ने मुझे एक वो भेजा था रिसोर्स बुक, उसके अंदर आई फाउंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन द साइज ऑफ बिजनेस जो हम आज एक और करेंगे, तो इंशाल्लाह वील अंडरस्टैंड हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस एज वेल। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन को व्हेनेवर यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन यू डिफाइन, डिफाइन का मतलब है कि उसको उसकी डेफिनेशन बताते हो, तो इन्होंने बताया हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व सेलिंग स्टेट ओन्ड एसेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स आप अगर ये बोलते हैं ना कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट वी आर सेलिंग द बिजनेसेस कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, या बाय द गवर्नमेंट, द businesses that are owned by the government are sold to the private sector। अब इसके एडवांटेजेस क्या है प्राइवेटाइजेशन के? सबसे पहला एडवांटेज गवर्नमेंट को होता है फाइनेंशियली। वो ये होता है दैट वंस यू सेल ऑफ दीज एसेट्स, वंस यू सेल ऑफ योर कंपनीज, वंस यू सेल ऑफ अ मिल और एनीथिंग, तो ये आपके लिए जनरेट करेगा फाइनेंशियल रिसोर्स। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब है अगर मैं कोई कंपनी या कुछ बेचता हूँ, अगर आज मैं उठ के बोलता हूँ कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दो, तो स्टील मिल अरबों में बिकेगा, तो गवर्नमेंट विल एक्चुअली अर्न दोज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास फिर पैसे होंगे कि वो किसी और चीज में इन्वेस्ट कर ले, वो छोटे छोटे काफी बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर ले। तो ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। दूसरा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या होता है? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द पब्लिक सेक्टर हैज फेल्ड इन द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। The private sector may success in the optimum use of resources by maintaining efficiency। अब हमने ये बात की कि अगर हर काम आप गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दोगे तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि उनका एम ही नहीं है टू बी एफिशिएंट। उनका एम है कि भाई सबको गुड्स मिल जाएं। और अब आपको पता है इन पाकिस्तान दैट वी नॉट वेरी, गवर्नमेंट इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ये कि वो अपनी करप्शन को भी कंट्रोल कर रही है, वो इस बात का भी ख्याल कर रही है कि सबको सब चीज मिल रही है। इंस्टेड गवर्नमेंट में भी आपको प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, तो आपकी रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि आपका एम ही नहीं है। तो अब आप जब एफिशिएंसी की तरफ नहीं हो, तो वंस यू सेल ऑफ दीज थिंग्स टू अ प्राइवेट सेक्टर, उनका काम तो डेफिनेटली ये होगा कि भाई हम यू रिसोर्सेस को इतना ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूज करें उनका कि हमारी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, कॉस्ट कम रहे, हमें प्रॉफिट ज्यादा बनता रहे। सही है। तीसरा होता है फॉस्टरिंग कंपटीशन। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स एंजॉय द स्टेटस ऑफ मोनोपोली। अब जो पब्लिक सेक्टर में जो भी ज्यादातर कंपनीज हैं उसमें मोनोपोली होती है। अब मोनोपोली अगर आपने नहीं पढ़ा तो मोनोपोली ये होता है कि उनके पास कंपटीशन नहीं होता। जैसे वो एक गुड प्रोवाइड करने वाली वो एक ही कंपनी होगी। ठीक है, तो जैसे पहले के टाइम क्या होता था, जो हमारी ये रेलवे थी, रेलवे से अगर मैंने कोई कार्गो भिजवाना है, मैंने अगर बोलना है कि यार मुझे अपना कोई लगेज कराची से इस्लामाबाद भेजना है, तो देर वॉज ओनली वन कंपनी दैट वाज पाकिस्तान रेलवेज। अब मैं वहां जाता हूँ, वहां जाके देखता हूँ कि वो घंटों लगा रहे हैं, पहले बिल्टी नहीं बना के दे रहे, फिर पैक नहीं करके दे रहे, फिर उन्होंने कोई ओनरशिप नहीं ली, मेरा बैगेज ऐसे ही फेंक दिया है। तो अब आपको, क्योंकि मोनोपोली है, उनको पता है कि लोग हमारे पास ही आएंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वंस यू सेल ऑफ दीज कंपनीज टू द प्राइवेट सेक्टर, तो बेस्ट एग्जांपल रेलवे वाला ही है। अगर आपका कभी रेलवे के पास जाना हो, तो यू विल सी दैट देयर आर 6 to 7 न्यू कंपनीज नाउ, and they will very carefully handle your luggage, and they'll very carefully handle the customer as well। ठीक है, तो वो इस बात का ख्याल करेंगे कि भाई किस कस्टमर जो है वो खुश जाए, क्योंकि हमारे पास अब कंपटीशन हो गया है। सो फॉस्टरिंग कंपटीशन का मतलब है कि अब पाकिस्तान रेलवे के साथ देयर इज XYZ रेलवेज, ABC रेलवे, CED रेलवेज, पता नहीं बहुत सारी। तो अब उनको पता है कि अगर हम अपने कस्टमर को अच्छा हैंडल नहीं करेंगे, तो वो दूसरे के पास चले जाएंगे। ठीक है, और दूसरे के पास चले जाएंगे तो आपका तो फिर मतलब
सेल्स डाउन हो जाएंगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि हम इनका ख्याल करें. सही है. उसके बाद रिड्यूसेस फिस्कल बर्डन. Privatization reduces the fiscal burden of the state by relieving it of the losses of the public enterprise and reducing the size of bureaucracy. फिस्कल बर्डन क्या होता है? फिस्कल बर्डन ये होता है कि जब गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस ओन कर रहा है और उसको उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये एक तरीके का बर्डन है. भाई ये बिजनेस हमें चलाना भी है, क्योंकि ये बंद हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो कम्युनिटी को सर्व करना है. और आप कम्युनिटी को जब सर्व करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप बिजनेस बंद नहीं कर सकते, और लॉस भी हो रहा है तो अपनी जेब से गवर्नमेंट पैसे दे रही है, टैक्स जमा नहीं हो रहे, तो दिस इज अ फिस्कल बर्डन. If you will sell off these assets, if you will sell off these companies to the private sector, what happens is you get an advantage. You get an advantage of the fact कि अब वो फिजिकल बर्डन जो है वो शेयर होने लगा है. ठीक है. और वो शेयर इस तरह हो गया है कि वो आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और प्राइवेट सेक्टर विल हैंडल दिस. इंस्टेड प्राइवेट सेक्टर आपको कमा कर टैक्सेस भी देगा. सही है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो इसका ही मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू कंट्रोल गवर्नमेंट मोनोपोली. अब आपने अभी हमने बताया कि भाई अगर अकेला बिजनेस होगा सो गवर्नमेंट इज रनिंग अ मोनोपोली. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में ये होता है कि आपके पास कंपटीशन है, तो ये इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. और आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो डेमोक्रेटिकली चलता है. डेमोक्रेटिकली क्या होता है? अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसके अंदर एक चीज बताई जाती है, डिमांड एंड सप्लाई. तो अगर आपकी चीज की डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस बढ़ेगी और रिसोर्सेज भी लोग लगाएंगे. वरना ये होगा कि अगर डिमांड कम होगी तो आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है. तो बेसिकली ये इस बेसिस पे आप प्राइसेस वगैरह सेट करते हो. इंस्टेड के जो पब्लिक सेक्टर होता है कि जी जब दिल चाहा हमने अपनी मर्जी का प्राइस सेट कर दिया, जब दिल चाहा हमने गुड्स कम कर दिए, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे डेमोक्रेटिकली चलेगा. डेमोक्रेटिकली का मतलब होता है कि सबके ओपिनियन से. ठीक है. जैसे हम वोट करते हैं तो भाई सबने वोट किया मिलके, तो उस तरह से डेमोक्रेटिकली हमने कंट्री का लीडर चूज किया. बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अब क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में आ गए हो जहां मेन एम इज टू मेक प्रॉफिट और इंक्रीज एफिशिएंसी, तो यू विल एक्चुअली मेक श्योर कि आप अपने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दो, क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स भी ज्यादा हैं. और अब आपके जब ऐसा है कि भाई वर्कर्स और वो, तो इन अ प्राइवेट सेक्टर यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपके वर्कर्स आपसे खुश ना हो. क्योंकि अगर आपके वर्कर्स आपसे खुश नहीं होंगे, वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे. और अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो आप बिजनेस में सरवाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो कम गुड्स बनाएंगे. और जब वो कम गुड्स बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ही रहेगी. ठीक है. आपकी सेल ज्यादा नहीं होंगी. अच्छा. अब जो when we will be doing a question, so remember how I'm connecting things. अब मैंने आपको बोला कि अगर आप ने लोग ज्यादा हायर किए एंड द वर्कर्स आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट मोटिवेटेड, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी. उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो गुड्स कम बनेंगे. गुड्स कम बनेंगे तो सेल्स कम होंगी. सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट कम होगा. In business studies you answer your question this way. So you describe a point and you apply it to the situation in a way कि आप ये पूरा तरह से connect करोगे अपने आंसर को. All right. So I hope कि ये वाला point समझ आ जाए. देखो, पढ़ सब लेते हैं but we don't know how to answer the questions. So we just need to understand कि हमें आंसर कैसे करना है. नाउ रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, ये हमने बात की थी कि जब आप पब्लिक सेक्टर में थे तो आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत था. भाई जो गवर्नमेंट आ रही है वो अपने बंदों को उस जगह पे बिठा रही है. बट नाउ दैट यूर इन द प्राइवेट सेक्टर, बहुत लिमिटेड हो जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. आप अपने तरीके से चलते हो, आप अपना ओनर, आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
आप अपना सीईओ खुद सेलेक्ट करते हो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस एंड द एबिलिटीज एंड स्किल्स, इंस्टेड के आपके जहन में कोई और मोटिव हो, ठीक है। Now, the eighth and ninth is reduction in bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी को हमने वही बात करी थी, पब्लिक एंटरप्राइज से रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो आपने बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर दिया, पब्लिक सेक्टर ओनरशिप खत्म कर दी। और लास्ट इज प्रोडक्टिविटी। अब ये हमने एक तरीके से डिस्कस कर लिया था कि क्योंकि एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अचीव मोर प्रॉफिट्स, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए वो चाहेंगे कि उनके वर्कर्स भी खुश हों। और उनके वर्कर्स किस तरह से खुश रहेंगे, उनके वर्कर्स इस तरह खुश रहेंगे कि उनको पता होगा कि यार अगर काम अच्छा करेंगे तो वी विल बी रिवॉर्डेड, एंड वी विल बी रिवॉर्डेड इन अ वे कि हमें शायद ज्यादा बोनसेस मिल रहे हो, हमें शायद लोग ज्यादा पैसे दे रहे हो, ठीक है। एंड वंस दे विल बी गेटिंग दैट, तो इवेंचुअली उनको ये फायदा होगा कि वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। मोर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है लेस टाइम में ज्यादा गुड बनाना या गुड अच्छा बनाना। तो दैट इज अ मेजर पॉइंट। अब मुझे बता दो कि इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस में एनी Yes, sir. क्वेश्चन? समझ आ गया क्लियरली? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। ठीक है, चलो अब डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है प्राइस। सो गवर्नमेंट का एम क्या है? गवर्नमेंट सारे बिजनेसेस यूजुअली नहीं बेचता, गवर्नमेंट ओनली सेल्स वो वाले बिजनेस विच आर लेस प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आ जाती है, ऑन व्हाट प्राइस विल द गवर्नमेंट आस्क एंड व्हाट प्राइस इज द प्राइवेट सेक्टर विलिंग टू पे। देखो, बिजनेस स्टडीज में या नॉर्मल इकोनॉमी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी अपना चलता हुआ काम नहीं बेचता। दैट इज, इफ दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, they will not sell their businesses. But why is the government selling the business? Because they feel कि भाई हमारे पास ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा, हमें इससे जान छुड़ानी है, and we need to earn some money. दैट इज वाई दे सेल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस पे डिसाइड करना मुश्किल होता है। दूसरा होता है ऑपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। ऑपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयज का मतलब ये होता है कि disinvestment tends to arise political opposition from employees who may lose their jobs from politicians who fear short-term unemployment consequence of liquidation of cost reduction by private owners। अच्छा, कई दफा जो आपकी एम्प्लॉयज हैं वो आर नॉट हैप्पी टू सेल द एसेट टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो एक सर्टेन पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो इस वक्त उस पार्टी के कंट्रोल में था, एंड दे वर रनिंग द बिजनेस देयर वे। मतलब उनको ये बताया कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो हमारे पास वो वाला हमें वो वाली ओके मनाल, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द एंड। सॉरी, मैंने अभी पढ़ा है। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो आप पूछ रहे हो वो हम डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसके अंदर जब हम बात करेंगे ऑपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज है ना, दे आर लेस एफिशिएंट एंड दे आर अवेयर कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया तो होगा ये कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी। सीधा सीधा बात है कि हम इतने एफिशिएंट हैं ही नहीं कि उनकी तरह चलें। तो अभी तो हम इसलिए रुके हुए हैं बिकॉज वी पार्ट ऑफ अ पार्टी एंड दे आर हेल्पिंग अस टू स्टे। तो इसलिए वो अपोज करते हैं, इसलिए वो अगेंस्ट जाते हैं। अब तीसरा आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। अब काइंड ऑफ जो मनाल ने पॉइंट रेस किया है वो यहाँ पे आ गया। इन द डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द डेवलप्ड कैपिटल मार्केट समटाइम्स मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फ्लोट शेयर्स एंड फॉर इंडिविजुअल बायर्स टू मेक फाइनेंस द लार्जर परचेज। अच्छा, अभी भी वो पॉइंट नहीं आया है, अभी खाली ये आया है कि भाई इसको सेल करना एक मुश्किल काम है ऑन द
ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। उसके अंदर ये वाली बात बोल रहे हैं कि जो एक डेवलप्ड कैपिटल मार्केट होती है उसके अंदर गवर्नमेंट को अपने शेयर्स फ्लोट करना, मतलब शेयर्स बेचना, बिकम्स डिफिकल्ट, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। Now the other 2 to 3 points are improper working. अब प्राइवेट सेक्टर का मसला ये होता है कि the main disadvantage of the private sector is that it has fallen much short of what this sector is capable of, or what it has achieved in some other countries. अब ये कह रहे हैं कि इन पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर उतना एफिशिएंट है ही नहीं जितना हमने एफिशिएंसी की बात करी थी। सो प्राइवेट सेक्टर इज नॉट दैट एफिशिएंट ओवर हियर, और उसमें कोई इतनी कॉस्ट रिडक्शन और क्वालिटी प्रोडक्शन होती ही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए ये मसला है। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। नाउ द मेजर प्रॉब्लम विद सेलिंग योर शेयर्स टू द प्राइवेट ओनर्स इज कि आप गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से चले जाते हो। तो अगर आप गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से चले जाते हो तो ये होता है कि ये वाला मसला हो सकता है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, देयर आर 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज दैट इफ यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड यू लीव द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड ऑल, तो बहुत मेजर मसला ये होता है दैट यू माइट एंड अप सेलिंग हार्मफुल गुड्स, यू माइट शट ऑफ द बिजनेस, यू माइट थिंक अबाउट एम्प्लॉइंग लेस लेबर, जो कि सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं इंटरवीन कर सकता? क्योंकि वो बिजनेस बेच चुका है। और दूसरे एंड पे क्या है कि देयर हैज बीन एन एक्सेसिव रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। दिस हैज प्रिवेंटेड एंड कंपटीशन फ्रॉम बिकमिंग अ जनरलाइज्ड फिनोमेना ऑफ द इकोनॉमी। और ये कहते हैं कि दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते और गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, लाइक गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहा है, तो लोग खुशी खुशी बिजनेस नहीं करते, और खुशी खुशी बिजनेस नहीं करेंगे तो कंपटीशन नहीं आएगा, कंपटीशन नहीं आएगा तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी तो कॉस्ट नहीं रिड्यूस होगी, और ओवरऑल कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखो, वेन एवर यूर आंसरिंग, इस तरह से अपने पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है। अच्छा, हाई कॉस्ट इकोनॉमी का मतलब है another problem with the private sector is that its cost in general are large and the price of products are unduly high. अब आप बड़ा सिंपल एग्जांपल स्कूल्स का ले लो। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2000 से लेके 5000 पर मंथ पे जा सकती है। प्राइवेट सेक्टर की इस वक्त फीस तकरीबन 15 to 20,000 पर मंथ है। सो दैट मीन्स कि आपके ओवरऑल कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब हाउ मच डिफरेंस इज देयर राइट नाउ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और इस वजह से एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। Concentration of economic power. The private sector emerges monopoly and the concentration of economic power in the hands of few. अच्छा, अब ये बात करते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर को भी दे दो तो ये नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कंपटीशन हो रहा है एंड एवरीवन हैज पावर। नो, देयर आर सम लार्ज प्लेयर्स हु हैव पावर एंड दे कैन इन्फ्लुएंस अदर्स एज वेल। अब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, they are a private sector owned business, but what they do is उनके पास complete monopoly है। आपकी लाइट बंद करे रखेंगे, महीना भी बंद कर देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। बिल आ रहे हैं, मीटर ज्यादा हो गया, बिल ज्यादा हो गया, एक्स वाई जी, उनकी जो मर्जी है, वो एफिशिएंटली नहीं चलेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। Yes, for example, PIA as well. पीआईए का आप देखोगे मनाल, देर स्टिल इज अ बिट ऑफ कंपटीशन। एयर ब्लू भी है, अब नया एयर सियाल भी है, सरीन भी है, सो दे हैव टू बी, लाइक देर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ कंपटीशन। बट व्हेन इट कम्स टू के इलेक्ट्रिक के पास बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है ना। अब हम कहाँ जाएंगे अगर हमारे पास लाइट नहीं आती? तो ये जो अभी बारिशें हुई थी अगस्त में, एंड वी सॉ दैट देयर वाज नो लाइट एट ऑल।
कुड वी डू एनीथिंग? मतलब छोटे घर क्या, बड़े बड़े घर, डिफेंस के घरों में वी वर सीइंग that people did not have electricity for like 5 to 6 days, but they had to sit and wait. They couldn't literally do anything. But yeah, PIA is an example. PIA जो है वो कई दफा बहुत हाई चार्ज कर देता है जस्ट ऑन द बेसिस कि भाई हम लेकिन पीआईए का मेजर फोकस रिमेन्स के दैट इज अ पब्लिक सेक्टर थिंग। ठीक है, उसका मेजर पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम है। तो अगर उसका एग्जांपल लोगी तो वो आप पब्लिक सेक्टर में डाल सकती हो। ओके, बैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। प्राइवेट सेक्टर में जो है वो डिफरेंट टाइप की डिस्प्यूट्स आ जाती हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी से निकालने की बातें करता है। वो क्यों करता है? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हैज दिस प्रॉब्लम वेयर दे से कि हम जो हैं वो एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एंड ऑल। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस के ट्रेड यूनियंस बन जाते हैं और उनको समझ आता है कि एफिशिएंसी की बेसिस पे दे आर एक्सप्लॉइटिंग द लेबर, इसलिए। ठीक है। और लास्ट होता है वाइड स्प्रेड सिकनेस। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है? आपकी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब जो ये वाले बिजनेस होते हैं ना प्राइवेट सेक्टर वाले, उनको इकोनॉमी से कोई कंसर्न नहीं है। इकोनॉमी से मतलब सोसाइटी से। तो उनको कोई कंसर्न नहीं है कि लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं, आप जो है इतना धुआं निकाल रहे हो, आप इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके केमिकल्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। उनका एम है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आप ये चीजों का ख्याल ही नहीं रखेंगे, और जब ख्याल नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली यू विल सफर। ठीक है, अब मैं मनाल आपके उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। वुडेंट द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज इंक्रीज टू इफ प्राइवेटाइजेशन हैपेंस? ये हमने काइंड ऑफ बता दिया है कि ऑब्वियसली आपकी प्राइसेस में बहुत बड़ा इंक्रीज आ सकता है। ठीक है, एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। लेकिन देखो, प्राइवेट सेक्टर का एम ये है ही नहीं कि सब अफोर्ड करें। वो कहते हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है वो हमें इतने पैसे दे दे कि हम नॉर्मली सरवाइव कर सके। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes, sir. ईमान, पक्की बात है ना? कोई मसला तो नहीं है? बिकॉज वी डन विद द चैप्टर और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ टू डू दिस। और दूसरी बात ये है कि अभी मीटिंग एंड होने वाली है 2-3 मिनट में। नाउ व्हेन आई पुट द रिकॉर्ड थिंग, जिसके अंदर आप मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। अच्छा, मनाल, योर क्वेश्चन इज, यू सर सेड। हम जो आप जी सर जी। जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे या अभी करेंगे? नहीं, अभी करेंगे हम, ताकि मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आंसर, एंड यू विल राइट इट सो दैट आई कुड सी कि किस तरह से आप कर रहे हो। क्योंकि देखो, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट एन आंसर तो फिर फायदा सर नहीं। लाइक अभी तो हमने प्रॉपर नोट्स वगैरह नहीं लिखे ना, तो इज़ इट बेटर कि हम लोग अगली क्लास में नहीं, क्वेश्चन आई कर एम लें? नॉट आस्किंग यू टू राइट। मैं अभी हाँ, खुद ओके बताऊंगा ओके। आपको कि कैसे करना है। फिर आई विल गिव यू दैट एज एन होमवर्क, ताकि आप हाँ, करके परफेक्ट। फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो, एंड आई विल चेक इट एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ओके सर। अच्छा मनाल, योर यस। क्वेश्चन इज, यू सेड समथिंग अबाउट प्राइवेट बिजनेसेस नाउ बीइंग दैट एफिशिएंट। मैंने ये बोला था कि पाकिस्तान में इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जैसे हम बात करें कि यूएस की इकोनॉमी है या यूके की इकोनॉमी है, सो द थिंग इज कि हमारे जो बिजनेसेस हैं दे आर स्टिल नॉट दैट एफिशिएंट। ठीक है, मैं ये बात बोल रहा था। तो इस वजह से हम बोल तो देते हैं कि भाई हम एफिशिएंसी की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम कॉस्ट कटिंग पे, बट अनफॉर्चुनेटली वी एज अ नेशन हैव फेल्ड। दैट इज व्हाई हम लोग इतना अच्छा नहीं कर पाते। नाउ योर क्वेश्चन इज, सो व्हाई डू पीपल पे हायर प्राइसेस दैट आरंट अप टू द मार्क? ओके, जब आप मनाल कंपेयर करते हो पब्लिक सेक्टर गुड्स से और प्राइवेट सेक्टर गुड्स को, देन द क्वेश्चन अराइजेस कि अप टू द मार्क तो नहीं है।
लेकिन फिर भी दे आर बेटर देन द पब्लिक सेक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ऑब्वियसली अभी तक रेलवे में जाके मुश्किल होती है, बट स्टिल व्हेन आई फील कि जब मैं पहले जाता था और मैं किसी पब्लिक, वो पाकिस्तान रेलवेज को गुड्स देता था, तो वो बहुत ही मुश्किल था। बट विद प्राइवेट सेक्टर रेलवेज फिर भी देयर हैव बीन समथिंग बेटर। तो इसलिए आई एम, it they are not up to the mark, but they are better। अगर if this answers your question, मैं कंपेयर अभी कर रहा हूँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर बेहतर है। लेकिन व्हेन आई कंपेयर द प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑफ यूके, आई विल से दैट ऑब्वियसली वी आर नॉट अप टू द मार्क। हम अभी बहुत पीछे हैं, उनकी सर्विसेज हमसे बहुत आगे हैं। सो वी एज अ प्राइवेट सेक्टर या वी एज एन इकोनॉमी हैव टू लर्न फ्रॉम देम, और उस तरह से